Okay, so in the last session, we have completed with supervised machine learning. We have discussed regression analysis and also the classification problems. We have seen different algorithms under regression, such as simple linear regression, multivariable linear regression, logistic regression, polynomial regression, and when to use such algorithm. That's also we have considered. Also, we have discussed classification problem statements and the classification algorithms like logistic regression, support vector machines, that is SVM, k-NIN classifier, that is k nearest neighbor, naive Bayes classifier, decision tree, and random forest classifier. So many classification algorithms as well as number of regression algorithms. In this lecture, we are going to talk about unsupervised machine learning. Now, as far as the supervised machine learning is concerned, the data set was labeled. Every data point in your data set was having certain label. So we have seen different data sets and different CSV files, in fact, and we were having the independent variables as well as the dependent variables. So the dependent variable was the label. That's what we can consider. It was whether the car is purchased or not purchased. That was the problem that we used to solve in different algorithms, considering all different algorithms. So our label was purchased or not purchased. That means 0 or 1. That was the label. That means 0 means car purchased and 1 means car not purchased. And we were having the social network advertisement data, where we used to collect the ID of the particular person, then age, gender, estimated salary, and based on that, we have predicted whether the particular person has purchased the car or not purchased that particular car. Now, in that case, we were having dependent variable under our data set, and that was our last column, and we used to have dependent variables. So as far as the unsupervised machine learning is concerned, there will be no dependent column or no dependent variable. So there will be only independent variables. That means the data set will not be labeled. Now, in other words, let's understand with reference to this example. If you're having these cats and dogs, this will be a input raw data, and again this there will be no label. So this particular animal is a cat or this is going to be a dog. Such kind of labels will be not there in our dataset. Only we will be having random images in our dataset. Now the objective is to classify or group them in different clusters or in different groups. So this is the machine learning algorithm which is going to interpret this information, and according to that, some algorithm is going to work on it. And after doing that, it is going to sort that this two will be classified as some group, and this two will be classified as some group. Not dogs and cat. You may consider their names also, but this will be a group one or cluster one, and this will be a cluster two, another cluster. This is cat cluster. So basically, we are not having the labels. The job of machine learning algorithm is to come up with the names or the group IDs or the labels. So final outcome will be the labels that we need to generate for our data set. So that's what we are going to do in terms of the unsupervised machine learning. Now there can be multiple applications where we need to sort or we need to make different groups for our available data. So that's what we are going to do today. We are also going to use some example, and in that I will be showing you how we can use some CSV file and how we can make different clusters out of that CSV file. Now the clustering, this is all about clustering or forming some groups. Okay, so basically we are going to create some different groups, or we are going to sort our data set in different group. Let's say 5 number of groups, 6 number of groups, 4 number of groups, or at least there may be two groups. Okay, if there is only one group, then there is no use of such algorithms because already data set is there, and we are going to divide that data set in number of groups. For example, in a mall, you have to identify different groups of customers. The customers which are spending, let's say 10,000 up to 10,000, that will be different group. Customers
who are spending up to 20,000, that will be different group. Customer who are spending more than 20,000, that will be group 3. So now whatever customers are visiting to your mall and how many or the amount whatever they are purchasing, so based on data we can classify or categorize them in different clusters. Now clustering is nothing but grouping the data points into different clusters or group, and consisting of similar data points or similar features, we can say. So how we are going to form the groups? So every element in a one group will have similar features or similar functions, we can say. For example, in the previous case, if we can segregate cats and dogs, so whatever cluster will form for the cat, so every element in it or every cat in it or in that particular cluster will have some similar features or functionality. And that can be size, color, behavior, that can be some features or even the shape. Based on that, we are going to classify them in different clusters, or we are going to make them, or we are going to convert them in different clusters. So that's what we are going to do, and we are going to try in this particular session. Now the examples can be market segmentation. So here we can segment in the market, or we can divide different customers in different categories: statistical data analysis, social network analysis, image segmentation, or the anomaly detection. That can be few applications. Now how it's going to work? So basically, at the beginning, we will be having the raw data, which is the mixture of every data point. So we will be having number of data points together, and they are absolutely not having any label. So this is the collection of fruits. This could be our data set having no labels, and the algorithm has to classify the similar objects will be grouped in some group. This is another cluster and this is another cluster. So the objective of this machine learning algorithm is to form the clusters, different clusters, as we don't have any labels to our data set. Now this is done using some clustering algorithms, and these are the number of algorithms that can be used. Now first of all, the partitioning clustering, that's the number one algorithm that can be used. Density based clustering, that is another algorithm. Distribution model based clustering. So now in case of distribution based model, so there could be some sort of distribution, mathematical distribution like Gaussian distribution and so on. And then hierarchical clustering, that is again the clustering where the tree like structure can be formed for this particular clustering model. Just like the decision tree, we are going to form some tree like structure, and that could be the clusters. And fuzzy clustering, that is another type of clustering. So mostly the partitioning clustering and hierarchical clustering can be used in order to form the different clusters, and we are going to actually implement this using some Python code. So now we'll discuss each and every type by simple diagrams. Now this is partitioning based clustering. So here what is done? So first of all, we can form some partitions. So now this is the data points. So whatever we are having here is the data points or the features that we need to classify, or we need to form some clusters. So now we can make some partitioning between the data points, and we can find out the centroid. So basically this is centroid based clustering. So this is the centroid for this one. So this is cluster 1, this is cluster 2, and so on. So again, depending upon the centroids, we are going to classify them in different clusters. Now this is the k-means clustering. Okay, so basically the k-means clustering is the good example of this kind of clustering algorithms. Now, another clustering technique is density based clustering. Now, here the density is considered. So, whatever data points we are having, so we will find out the its density. So, based on the density, we will find out, we will make them a different cluster. So, once we plot the data points, or once we plot our data, so we can consider some dense regions, and that can be a different cluster. Some distribution model based clustering, so it forms it is like we are using some Gaussian mixture models or Gaussian distribution, some sort of mathematical distribution.
So every data will have some sort of distribution. So statistical analysis, if you consider for data, so data can form, or data can be having some sort of distribution. Sometimes we say linearly distributed, sometimes we can say it is Gaussian distribution. So based on that, if we are making some clustering, so that is this distribution model based clustering. And another is the tree like structure, that is hierarchical clustering, where our data is converted into tree like cluster. So the main data will be divided into two clusters, and again that will be subdivided in sub clusters and so on. So if this is happening, this is the tree like clustering or hierarchical clustering algorithm. So we'll be discussing each and everything in detail, how this is done with the help of some example. This was just an introduction to the unsupervised machine learning and different algorithm that can be used, and different techniques that can be used for the clustering. But in actual practice, we are going to use the Python code to implement this clustering algorithms, and we are also going to understand what is the basic mathematics involved behind these clustering algorithms. So these are some applications of clustering or the unsupervised machine learning. Now, first one is the cancer cell detection. So there again, we can, in order to find out which cells are cancerous cells, which are non-cancerous cells. So we can form two different clusters: cancerous cells and non-cancerous cells. So based on that, we will be able to identify which is cancerous cells and which is non-cancerous cell. Search engines. So in case of search engines, again the clustering can be used to find out some result based on the search query that we are going to do. Customer segmentation, that's what, and this is the customer segmentation. For this only we are going to implement, so this application customer segment, this will be a small project that we are going to implement into the session. So that's what we are going to do in biology, in land use. So in GIS database, as far as the land use is concerned, and as far as in biology is concerned, different species of plants, animals can be classified or can be formed in terms of some clusters using the clustering algorithms or the unsupervised machine learning algorithm. Now, the number one algorithm, which is actually a partitioning based clustering technique, which is k-means clustering algorithm, and that's the agenda for today. We are going to deep dive into the k-means clustering algorithm. We'll implement this thing using some Python code, and also we will consider some data set to implement this k-means clustering algorithm. Now, the k-means clustering algorithm is all about having the k number of clusters. So that's the k. Now the k is the number of clusters that we are going to generate. Let's say if I say 5 number of clusters, in that case the value of k will be equal to 5. So k means number of clusters that we are going to form. Now cluster means number of groups. Now, in today's practical, we will be considering the data set of mall customers, and we are going to divide the customers in different groups. Let's say 3 to 4 number of groups, and every group of customers will be having some different qualities or different features. Let's say group number one, the customer which are there in the group number one, they can spend up to 10,000 rupees. So their buying capabilities and their whatever, how much they can spend, that's what we can consider, or that's what we can evaluate as an conclusion from our clustering algorithm. So consider a mall where the number of customers are visiting and they are spending some amount. So based on their data, their gender, their age, their spending score, or their annual income, we can categorize them in different groups. So we will sort the customers in different groups. Why to sort? For smart marketing. So once we sort the customers for different group of customers, we will be having different offers, different promotional offers. For example, if the customer can spend up to 10,000, then we will be having different promotional messages, different offers to that customer. And if the customer can spend up to 1 lakh, then that means the buying capacity of that customer is quite high. So we will be having some different
brand suggestion, different promotional offers to that customer. So that's the objective. That's what we are going to do today. So K means it's all about the centroid. By the means, we can find out the centroid. So it's a centroid based or partitioning based clustering technique. Now, what is centroid? What is partitioning? That we will understand shortly while discussing the steps which we are going to use in K means clustering. So it is unsupervised machine learning, as I said, and again the K means the number of clusters that we are going to create from the unlabeled data set. So in this case, the data set will be unlabeled and there will be no dependent column. Okay, so there will be no dependent variable. Now, as far as the supervised machine learning is concerned, there were the independent variables as well as the dependent variable. Now the job of this algorithm is to create that dependent variable. So we will create that dependent variable, or we will create the output variable or the output labels or output number of clusters. Okay, so we'll be having the uh, unlabeled data set, and on that data set we are going to operate. Now let's discuss the different steps. Now let's say we are having this data, so these are the customers. Let's say these every data point represents the customers visiting to the mall. So these all data points, this everything is, and these are mixed. Now on the x-axis could be the income of that customer, and the on the y-axis there could be the spend, how much money they are spending, that could be on y-axis. So based on that we are just marking points on the xy graph. So what is there on the x-axis? On the x-axis there could be the salary or the income of a customer, and on y-axis there could be how much money they have spent during the purchase, that will be on the y-axis. So based on that, we will be making these data points like this. These are some data points. And after applying K means clustering, we will group them in different groups. So this is customer group 1, customer group 2, and this is customer group 3. And we will be having different promotional offers to customer group A, different promotional offers to customer group 2, and different promotional offers to customer number 3. And this will be a smart marketing strategy. तो हम क्या करेंगे कि एक ही मैसेज या फिर एक ही प्रमोशनल ऑफर सारे कस्टमर को नहीं भेजेंगे। हम क्या करेंगे कि जो कस्टमर मॉल में विजिट कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी है और उन्होंने खर्चा कितना कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी हैविंग दिस क्लस्टर्स और दिस डेटा पॉइंट। तो ये हमारा इनिशियल डेटा है, रॉ डेटा है। दिस इज आवर डेटा सेट। तो इसके अंदर बहुत सारे यूजर्स है, कस्टमर्स है, उनकी जो सैलरी है वर्सेस उनका हाउ मच अमाउंट दे हैव स्पेंट, हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। Now दोनों के दोनों सैलरी एंड हाउ मच दे हैव स्पेंड, दिस इज इनपुट वेरिएबल, दिस इज इनपुट, दिस इज नॉट द आउटपुट। तो इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्लस्टर्स और ग्रुप्स हमें उसके बनाने हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, उस कस्टमर को सॉर्ट आउट करेंगे कि दिस कस्टमर्स ये कैटेगरी, तो ये कस्टमर का ये ग्रुप हो गया, दिस इज अनदर ग्रुप और दिस अनदर ग्रुप। तो एक बार हमें पता चला कि कस्टमर्स यहाँ पे जो है उनकी सैलरी भी कम है और उनका जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी कम है। तो इन वाले कस्टमर्स को हम डिफरेंट ऑफर्स प्रमोट करेंगे। कुछ कस्टमर्स यहाँ पे होंगे कि जिनका सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका एक्सपेंसेस या फिर जो भी वो स्पेंड कर रहे हैं परचेस वो कम है। तो वो वाले कस्टमर्स का अलग ग्रुप हो गया, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे कि उनका सैलरी कम है लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा है, उसका अलग कैटेगरी होगा। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे कि जिनका सैलरी भी ज़्यादा है एंड उनका जो भी स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो परचेस कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा है, तो उनका अलग कैटेगरी होगा। तो इससे हमने पैटर्न एनालाइज किया कि कौन से कस्टमर क्या परचेस कर रहे हैं और ये सारे कस्टमर्स को, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम उन कस्टमर्स को अलग से प्रमोशनल मैसेजेस भेजेंगे और उनको अलग से मार्केटिंग करेंगे, सो दैट हमारी सेल्स बढ़ेंगी। वो जो भी मॉल है उसकी सेल्स बढ़ेंगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग का ये होगा कि सेल्स इंक्रीज करना है। तो सेल्स इंक्रीज करेंगे तो हम जो भी प्रमोशनल मैसेज भेजेंगे वो अगर सबको सेम भेजेंगे तो हो सकता है कि जो इस वाले ग्रुप में है वो कस्टमर्स को वो ऑफर आपकी पसंद ना आए, या फिर सारे कस्टमर को वो सेम ऑफर पसंद नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे कि उनको ग्रुपिज्म करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करेंगे
और उस ग्रुप के हिसाब से हम उसको प्रमोट करेंगे। अगर कोई बंदा कम स्पेंड कर रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट वाले जो भी ऑफर्स होंगे उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, सो दैट वो खर्चा करेगा या फिर वो खरीद करेगा। उसको कम कॉस्ट वाले हम प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। जो कस्टमर ज़्यादा पे कर रहे हैं उनको हाई ब्रांड जो भी होंगे, रेप्यूटेड ब्रांड्स जो भी होंगे, उसमें कुछ प्रमोट करेंगे सो दैट वो परचेस करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो कस्टमर कम परचेस कर रहा है वो ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड या फिर कॉस्टली ब्रांड्स के चीज़ें खरीदी नहीं करने वाला है। तो उसको हम अननेसेसरली वो प्रमोशनल मैसेज भेज के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। So according to that, we will segregate the customers in different groups. So that's the objective. तो वो प्रॉब्लम आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Now, according to that, we will be having the different or these are the steps. So first of all, number one कि हमें चूज करना है कि हम कितने नंबर ऑफ की पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं वो हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दैट इज द नंबर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग आउट द नंबर के एंड हम एक रैंडम के पॉइंट के हिसाब से रैंडम सेंट्रॉइड्स सिलेक्ट करेंगे एंड इट कैन बी फ्रॉम द डेटा सेट और इट कैन बी अदर फ्रॉम द डेटा सेट। तो एक बार हमें पता चला कि ये हमारे है तो हम क्या करेंगे, विल बी सिलेक्टिंग थ्री रैंडम सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पॉइंट। नाउ सेंट्रॉइड का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहाँ पे सेंटर है उस वाले डेटा पॉइंट्स का। तो अगर यहाँ पे ये डेंसिटी है इसका, तो इसका सेंटर मान के चलो यहाँ पे सेंटर में कहीं तो होगा। तो ये जो सर्कल है या फिर जो भी इरेगुलर शेप है इसका सेंटर, दैट मीन सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी कैन से। सो दैट विल बी दिस वन। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट से अगर हम रिप्रेजेंट करें उसको तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो इस सर्कल को अगर आपको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे सेंटर पे एक डॉट लगाओगे, उसे बोलोगे कि ये सर्कल है या फिर उसका सेंट्रॉइड है, सेंटर पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डूइंग दैट कि हम नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने करने हैं। तो मेरा जो डेटा सेट है, लेट्स से आई एम हैविंग रैंडम 200 400 कस्टमर्स का एंट्री है। तो उसमें से मुझे कितने कैटेगरीज बनाने हैं दैट आई विल फाइंड इट आउट। तो लेट्स से मुझे करने हैं 5 कैटेगरीज। तो आई विल बी फाइंडिंग 5 एज अ के। तो उतने नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स, तो उतने नंबर ऑफ रैंडम पॉइंट्स मैं मार्किंग करूंगा। वो डेटा सेट में के ही कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर अलग हो सकता है। आई विल बी मार्किंग 5 पॉइंट्स। देन जो भी सेंट्रॉइड्स मैंने मार्क किए हुए, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको जो क्लोज है, तो क्लोज वाले अदर डेटा पॉइंट जो कुछ भी है या फिर अदर कस्टमर्स इन आवर एग्जांपल, हम उस सेंट्रॉइड को असाइन करते जाएंगे। तो 5 कस्टमर को कुछ अलग 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 डेटा मिलेगा। तो आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द वेरिएंस कितना है एंड वी विल कैलकुलेट द न्यू सेंट्रॉइड फॉर दैट क्लस्टर। तो एक बार हमें वो सारे पॉइंट्स मिल गए तो फिर से हमें नया सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वॉट एवर सेंट्रॉइड वी हैव कैलकुलेटेड मे नॉट बी एट द सेंटर पोजिशन ऑफ दैट क्लस्टर। सो नया सेंट्रॉइड जनरेट करेंगे। तो एक बार नया सेंट्रॉइड जनरेट होगा तो रीअसाइन होगा क्लस्टरिंग और डेटा पॉइंट्स। तो इसको हम इटरेटिव मेथड से अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और फाइनली आवर मॉडल विल बी रेडी। तो नाउ विद दिस स्टेप्स और वट एवर यहाँ पे लिखा है उससे शायद ये क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वी विल आइडेंटिफाई, वी विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो नाउ कंसिडर कि वी आर हैविंग टू इनपुट वेरिएबल्स, दैट मीन लेट्स से कि सैलरी कितनी है, उनका इनकम कितना है और उनका स्पेंडिंग कितना है। सो दिस इज स्पेंडिंग ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज इनकम ऑन एक्स एक्सिस। तो बेस्ड ऑन दैट वी आर हैविंग दिस स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पे हमने ग्राफिकली ये सारे कस्टमर के पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हैं। तो इससे हमें बनाने हैं, लेट्स से टू टू क्लस्टर बनाने हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक टू डिफरेंट क्लस्टर्स। तो यहाँ पे रैंडमली मैं के इक्वल टू 2 करके आई विल बी प्लेसिंग टू डिफरेंट सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का सेंट्रॉइड और एक ऑरेंज कलर का सेंट्रॉइड। तो जो जो स्क्वायर है दैट इज माय सेंट्रॉइड्स। तो ये दो सेंट्रॉइड्स मेरे यहाँ पे है, एक है ब्लू कलर का और दूसरा है ऑरेंज कलर का। और जो ग्रीन कलर के डॉट्स है, ऑल दीज आर द डेटा पॉइंट्स और द कस्टमर्स। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी अपनी कि यहाँ पे दो सेंट्रॉइड्स रैंडमली प्लेस करने। ना ये जो दो सेंट्रॉइड्स है इट कैन बी डेटा पॉइंट में से ही कोई, मतलब ये किसी ग्रीन डॉट को ही मैं सेंट्रॉइड बोल सकता हूँ, सेंट्रॉइड 1, एंड किसी अदर ग्रीन डॉट को सेंट्रॉइड 2 बोल सकता हूँ, या फिर वो अदर देन डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इट विल बी
रैंडम थिंग जो कि हमारा एल्गोरिदम रैंडमली असाइन करेगा. नाउ वंस वी हैव द सेंट्रोइड, तो हम बीच में एक पार्टीशन बनाएंगे बिटवीन दीज टू सेंट्रोइड्स. तो एक पार्टीशन यहाँ पे बन जाएगी. दिस इज डॉटेड लाइन विच इज द पार्टीशन लाइन. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो क्लोज पॉइंट है वो ब्लू वाले क्लस्टर को जो भी, या फिर उस वाले पॉइंट को जो भी क्लोज कस्टमर से या भी जो भी क्लोज डेटा पॉइंट से, दैट वी विल असाइन. एंड अगेन फॉर दिस ऑरेंज वाला थिंग वी विल बी हैविंग द क्लोजेस्ट पॉइंट्स, जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट्स है उसको वो हम इसको असाइन करते जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट एक पार्टीशनिंग लाइन यहाँ पे बनेगी, और इसके टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस देयर विल बी क्लस्टर 1 एंड टूवर्ड्स द राइट देयर विल बी क्लस्टर 2. तो इस तरह से हम इसको पार्टीशनिंग करेंगे और क्लस्टर फॉर्म करेंगे. तो जैसे ही क्लस्टर फॉर्म हो जाएंगे, नाउ वी विल मेक, लेट्स मेक इट इन डिफरेंट कलर फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स है, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस पार्टीशन वी आर हैविंग द क्लस्टर 1 और कस्टमर ग्रुप 1, एंड टूवर्ड्स द राइट वी आर हैविंग कस्टमर ग्रुप 2. तो ये हमने ऑरेंज कलर से मेंशन किया और उस तरफ हमने ब्लू कलर से मेंशन किया. तो इस तरह से दो कस्टमर का ग्रुप हो जाएगा. लेकिन वेट, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा. अभी जैसे हमने ये ग्रुप फॉर्म किए, वी नीड टू फाइंड आउट न्यू सेंट्रॉइड, क्योंकि हमने रैंडमली सेंट्रॉइड यहाँ पे बनाया था. सो नाउ वी विल फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस क्लस्टर. तो ये जो ऑरेंज कलर का बन चुका है, इसका एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पे? ये तो सेंटर नहीं हो सकता जहाँ पे ये है. या फिर ये जो ब्लू कलर का बना है, दैट इज नॉट अगेन द सेंटर, इसका कुछ सेंटर और हो सकता है. तो वी विल बी फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंट्रॉइड, एंड उसके अकॉर्डिंग ये सेंट्रॉइड शिफ्ट किया जाएगा. तो लेट्स से हियर इट कुड बी दी सेंट्रॉइड, जहाँ पे ये डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे ये शिफ्ट होना चाहिए. एंड अगेन दिस शुड बी शिफ्टेड टू दिस डॉटेड लाइन, डॉटेड पोर्शन, बिकॉज ये वाला जो क्लस्टर हमने फॉर्म किया था उसके सेंट्रॉइड्स उस तरफ शिफ्ट होने चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी शिफ्टिंग द सेंट्रॉइड, एंड अगेन यहाँ पे रीअसाइनमेंट होगा कि जो भी पॉइंट्स है उसका जो भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग. तो अगर इस सेंट्रॉइड को ये दो पॉइंट यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, या फॉर दिस सेंट्रॉइड दिस पॉइंट इज गेटिंग क्लोज, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी रीअसाइनिंग दैट, एंड अगेन देयर विल बी अ डेटा पॉइंट और द पार्टीशन लाइन बनेगी और फिर से रीअसाइनमेंट होगा. सो अगेन द रीअसाइनमेंट, सो फाइनली this will look like this one, and again the centroids can be shifted, as this is again still not the center of gravity and this is not the center of gravity. So again reassignment, so this will be shifted here and this will be shifted here. So again this will be a new centroid for our data points. So again there will be a line of partitioning, so there's some sort of line. So towards left different cluster, towards right different cluster. So again, we will be forming the clusters, and this is the final outcome. So once we are satisfied, so this will be the final result where this represents no further centroid shifting. And finally, this is cluster 1, this is customer group 1, and this is customer group 2. So that's the final outcome, and finally at the end we can represent these two clusters in this particular way. So this is how the clusters can be formed. Okay, so ये दो clusters इस तरह से बन जाएंगे. Now यहाँ पे एक challenge है कि वैल्यू ऑफ के कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनाने हैं, दैट्स द चैलेंज. तो क्या मैं 2 नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाऊंगा, या फिर 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाऊंगा, या फिर 4 नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाऊंगा? ये नंबर प्री डिफाइन नहीं हो सकता, कि मुझे नहीं हो पता कि मेरे पास कितने टाइप के कस्टमर आ रहे हैं. दैट आई डोंट नो एक्चुअली, दैट्स हाउ मुझे ये पता नहीं कि मैं कितने टाइप के कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाऊंगा. सो ये के का जो नंबर है दैट इज वेरी मच चैलेंजिंग. तो ये जो नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज द चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि कितने मेरे टाइप के कस्टमर्स होंगे. वो 2 टाइप के हो गए, 3 टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे, तो डेफिनेटली आई रियली डोंट नो दैट थिंग. सो दैट्स द एक्चुअल चैलेंज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट के नंबर कितने ग्रुप बनाने हैं. So that's all about finding the K number for the cluster. And this is very interesting. And for that, we are going to use the elbow method to find out the number of clusters. कितने number of clusters हमें बनाने होंगे, that we can find out using the this elbow method, and that will be our K number or the number of clusters.
And actually the performance of k means clustering algorithm is depends on the number of clusters और highly efficient number of clusters कितने आप बनाते हो उसके ऊपर ही इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा. तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ के और द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. कितने नंबर ऑफ वो क्लस्टर ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए एंड कम भी नहीं होने चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज we are going to use the elbow method, which stands or which is actually using the WCSS, and that is actually stands for within cluster sum of squares method, which is the elbow method. And in order to plot this elbow graph, we'll be using this within cluster sum of squares, and that will be the WCSS formula. So once you calculate this WCSS for each and every cluster and for to all clusters, so it is actually summation of the square of distances for all the clusters. And once we got everything, then that will be our WCSS value, and that WCSS value has to be minimum. Okay, it has to be as low as possible. Now what is this value? So it is summation of the point in cluster 1 distance between pi to c1 square. Okay, सो इसके अंदर ये थोड़ा सिंपलिस्टिक वे से हम समझते हैं. तो यहाँ पे ये दो क्लस्टर हैं, ठीक है. तो इस क्लस्टर के अंदर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इन दो क्लस्टर्स के अंदर वी आर हैविंग नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 दिस 5 6 एंड अगेन दिस इज हैविंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो मैं क्या करूँगा, हर एक पॉइंट का विद दिस सेंटर और डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा. तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6. सो P1 टू दिस सेंट्रॉइड 1 मैं एक डिस्टेंस मिलेगा, लेट से इट इज 2 और वॉट एवर डिस्टेंस, उसकी स्क्वायर प्लस P2 टू दिस सेंट्रॉइड डिस्टेंस उसकी स्क्वायर प्लस P3 टू दिस सेंट्रॉइड डिस्टेंस उसका स्क्वायर प्लस ऐसे इन इस वाले क्लस्टर में के सारे पॉइंट का सेंट्रॉइड के साथ का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर वैल्यू मिलेगा और उन सब का एडिशन हो जाएगा, वो एक वैल्यू मिलेगी. तो लेट्स से दैट एडिशन इज A. तो वी विल रिपीट सेम प्रोसेस फॉर क्लस्टर टू. क्लस्टर टू का भी हर एक पॉइंट का उसके सेंट्रॉइड के बीच में का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे और सारे पॉइंट्स का जो भी डिस्टेंस आएगा उसका एडिशन करेंगे. सो दैट इज लेट्स से उसका जो भी एडिशन है वो हो गया बी. तो ए प्लस बी दैट इज नथिंग बट WCSS वैल्यू. So within cluster sum of square. तो a plus b that will be WCSS value और ये वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. ओके, सो दैट हैज टू बी वेरी मच स्मॉल. तो डेफिनेटली अगर हमने क्लस्टर्स बढ़ा दिए, अगर मेरे 10 नंबर ऑफ क्लस्टर्स है 20 नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, तो वो जो WCSS वैल्यू वो कम आएगा, बिकॉज जितने ज्यादा क्लस्टर उतने ज्यादा सेंट्रॉइड और जितने ज्यादा सेंट्रॉइड, अगर लेट से यहाँ पे दो सेंट्रॉइड है इसके वजह से ये डिस्टेंस मिलेगा. अगर यहाँ पे 4 सेंट्रॉइड होते तो इस वाले सर्कल के अंदर और एक सेंट्रॉइड होता और इस वाले के अंदर और एक सेंट्रॉइड होता. तो डेफिनेटली ये जो अभी डिस्टेंस मेजर होगा, क्योंकि दो सेंट्रॉइड है तो इस वाले सेंट्रॉइड को अलग क्लस्टर बनेगा इस वाले के, तो यहाँ पे दो क्लस्टर और यहाँ पे दो क्लस्टर, टोटल 4 क्लस्टर बनेंगे. तो हर एक क्लस्टर के अंदर डिस्टेंस काफी कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रॉइड ज्यादा है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी वेरी मच लेस. तो इन दैट केस WCSS वैल्यू काफी कम आएगी. तो अगर हमने क्लस्टर्स बढ़ा दिए, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, डेफिनेटली WCSS वैल्यू विल बी लो. लेकिन ज्यादा क्लस्टर्स होंगे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है. ओके, तो ऑप्टिमल नंबर ऑफ होने चाहिए. अगर मेरे पास 200 नंबर ऑफ कस्टमर्स है और अगर मैंने 200 नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या फिर सेंट्रॉइड्स बनाए या फिर क्लस्टर्स बनाए, तो हर एक कस्टमर का अलग कैटेगरी हो गया. तो फायदा क्या है ये मशीन लर्निंग करके? सो एज इफ यू हैव टू ट्रीट कस्टमर सेपरेटली, ईच एंड एवरी कस्टमर सेपरेटली, देन इट्स ऑफ नो यूज. तो हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ के चाहिए. ये डिस्टेंस कम होगा वो दैट इज गुड, बट डिस्टेंस भी कम चाहिए एंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर भी चाहिए. क्लस्टर ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए. इट हैज टू बी ऑप्टिमल नंबर. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर दैट पर्पज दिस एल्बो मेथड विल बी यूज. तो ये एल्बो मतलब एक एल्बो लाइक ग्राफ बनेगा
तो जो एल्बो का जो शार्पनेस है और जहाँ पे वो एल्बो मिलेगा हमें, वो जो कर्व मिलेगा, उसमें जहाँ पे वो एल्बो वाला पॉइंट मिलेगा, उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे इतने होंगे। सो दिस विल बी द पॉइंट। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली यूजिंग सम कोड। तो उसके लिए हम एक पाइथन का कोड बनाएंगे। पहले हम ये एल्बो वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जैसे ही हमें ये एल्बो वाला ग्राफ मिलेगा, उसमें से हम के नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे। वो हमें पता चलेगा ये एल्बो ग्राफ से। और जैसे हमें पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे होने चाहिए, हम उस के को यूज करेंगे और उससे हम हमारा मॉडल ट्रेन करेंगे, एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द different clusters as per this k wala graph. So for that purpose, let me show you the data set first, and based on this data set we will be initiating the coding. So this is mallcustomers.csv. This is our dataset file. So this is having number of columns like customer id, then it's having the its gender, we are having age, we are having annual income, we are having, and spending score we are having. So basically this spending score represent how much the customer is spending, and definitely higher the spending core, more they are spending. So its spending core is out of 1 to 100. So higher the spending core, more they are spending, lesser the spending core, less they are spending. तो इसके अंदर कोई भी आउटपुट कॉलम है नहीं। तो यहाँ पे इनपुट फीचर्स है, कस्टमर आईडी है। तो ये एज पर द कस्टमर आईडी, उसका जेंडर, उसका एज, तो एज ऑल्सो मैटर्स। लेकिन यहाँ पे जेंडर और उसका कस्टमर आईडी लेट्स से वी विल इग्नोर, एंड ऑल्सो वी विल इग्नोर द एज कॉलम। तो हम सिर्फ दो फीचर्स ही कंसिडर करेंगे, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर। तो ये जो फीचर्स है वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल है, तो वो हम दो फीचर्स को यूज करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दीज टू फीचर्स वी विल बी ट्राइंग टू क्लासिफाई our customers in different groups. Okay, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो 5 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इसको क्लासिफाई हम कर देंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास कोई भी आउटपुट कॉलम नहीं है, या फिर लेबल का कॉलम है नहीं, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट है, इनपुट वेरिएबल है। आउटपुट में उसके ग्रुप, लेट्स से कि ये कस्टमर का कैटेगरी है ए, दिस इज कैटेगरी बी, दिस इज कैटेगरी सी। तो कस्टमर का कैटेगरी हमारे पास है ही नहीं, वो हमें बनाना है, अभी वो हमें जनरेट करना है यूजिंग दिस clustering algorithm. So that is the objective. So I will be opening the VS Code ID over here. So this is the how I will be opening the Visual Studio Code. So I will be opening Visual Studio ID in that folder. So now to open in that folder, this method I will be using. Okay, so this is how I am in that folder, and I am having this customer CSV. ये हमारा data set यहाँ पे है, and you all are familiar, well familiar with use of this ID and writing codes over here. Now, very first step, I'll be creating a file, and let's say this is k means clustering by this name dot py Python code I'll be creating. And of course, I'll be zooming in this area so that it will be clearly visible to you. Okay, so now that's fine. So now we have created one file, and again we are having dataset in the same file or in the same folder. So now the step number one that we are going to follow, and this is similar to the uh, supervised machine learning, loading the required packages. So these are the packages that we need, that we are going to load, and the number of package is import numpy as np. Okay, and this is as usual, we know. Second is import pandas as pd. So this is very common, and in all practicals we have followed this thing, and you need to follow this thing in this as well. So import matplotlib dot pyplot as plt. Right. So three important libraries: NumPy,
to deal with the arrays, Matplotlib to deal with the graphs, so for the graphical representation, and pandas to deal with the CSV files. So that's what we can do. Number two step number two, loading the data set. And in this case, we are having mall customers.csv as a data set. So I'll be creating a variable called data set, which is equals to pd, which is from the pandas library dot read underscore csv file. And here I need to specify the name of my CSV file. So this will be mall underscore customers dot csv. Okay, so that's the file. And if you want to print the content from this file, so you can definitely print. So using print dataset underscore dataset dot head function, and we will be able to see the first 5 rows of our dataset. So after running this code, we'll be getting the first 5 results or the first 5 rows from our dataset. So these are the first 5 rows from our dataset. Okay, so but we are actually not interested in printing because we have done this for so many times. Now here comes the step number 3. Now here extracting the input variables only, not the dependent. Okay, only the input variables or the independent variables, or in other words I can call it as inputs. Okay, so only inputs, there is no output. Okay, as it is unsupervised machine learning, no outputs, no labels are there. We have to generate the output column. हमें output column को generate करना है, and we have to create the labels. तो that's the objective, हमें groups बनाने हैं. तो अगर ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता, तो हमारा जो डेटा सेट होता उसके अंदर ये सारे इनपुट वेरिएबल प्लस एक कॉलम होता कस्टमर कैटेगरी. तो कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसे उसकी कैटेगरी होती. तो लेट्स से 5 कैटेगरी के कस्टमर होंगे तो 5 होते. तो हमें वो जनरेट करना है, वो हमारे पास अभी है नहीं. सो दिस इज कॉलम 0, कॉलम 1, कस्टमर आईडी इज कॉलम 0, gender is column 1, age is column 2, annual income is column 3, and spending score is column 4. तो इस तरह से हमारे पास 4 कॉलम्स है. सो नाउ यहाँ से हमें ये 3 कॉलम को मैं इग्नोर कर दूंगा, इसको मैं नहीं यूज करूंगा फॉर आवर प्रैक्टिकल. आई विल बी यूजिंग ओनली दीज 2 कॉलम. तो इन दोनों को ही मैं फीचर्स बोल के यूज करूंगा क्योंकि हमें एक 2D ग्राफ चाहिए एंड डेटा विजुअलाइजेशन भी करना है तो थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए मैं 2 करूंगा. एंड सेकेंडली कस्टमर आईडी जैसा कॉलम है वो ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज बनता ही नहीं. Definitely, gender and age can contribute to the pattern how they are purchasing, but we will ignore those 2 columns as we need a 2D graph. तो यहाँ पे this will be a x which is the independent variables और inputs. तो हमारा जो पूरा डेटा सेट है उसके अंदर से हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए. तो उसका लोकेशन हम बोलेंगे. तो यहाँ पे मुझे ऑल रोज चाहिए, लेकिन कॉलम नंबर 3 और 4 ही चाहिए. डॉट वैल्यूज. तो एज इट इज डेटा फ्रेम है, डेटा ये जो डेटा सेट दैट इज पांडास डेटा फ्रेम. तो उसमें से मुझे वैल्यूज चाहिए ओनली. सो पूरा जो डेटा सेट यहाँ पे है वो सारा डेटा सेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन कॉलम नंबर 3 एंड 4. तो इसके ऊपर ही मैं काम करूंगा क्योंकि जैसे ये कस्टमर आईडी का कोई यूज होता ही नहीं और ये बाकी 2 का शायद थोड़ा यूज होगा, लेकिन वी विल इग्नोर. तो आप चाहो तो इसको चारों को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस 2 बिकॉज मैं इनकम वर्सेस ये स्पेंडिंग स्कोर प्लॉट करूंगा तो मुझे 2D ग्राफ मिलेगा. अगर ये 4 मैं यूज करूंगा या फिर 3 यूज करूंगा तो इट विल बी हैविंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स. सो 2D प्लॉटिंग वहां पे पॉसिबल नहीं होगा. वी नीड टू गो फॉर 3D प्लॉटिंग और समटाइम्स दो किसी वेरिएबल्स के साथ 2D प्लॉटिंग करना पड़ेगा. Okay, so that could be the problem. That's how I'm using only 2 different variables. Okay.
नाउ यहाँ पे होगा कि एल्बो मेथड काम करेगी। नाउ यहाँ पे हमें डेटा सेट को डिवाइड भी नहीं करना है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट, ये वाला करना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हम ट्रेनिंग डेटा सेट को 70% को हम स्प्लिट कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर टेस्टिंग के लिए एंड आफ्टर दैट वी ट्रेन एंड वी इवेल्युएट आवर परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल ऑन द टेस्टिंग डेटा सेट। तो ये सब अभी करना ही नहीं है। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द के नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने हैं, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड। तो 4 नंबर ऑफ ग्रुप करने हैं, 5 करने हैं, ये सारे कस्टमर्स हमारे पास है। इनमें से हमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स करने हैं, 4 ग्रुप करने हैं, 5 ग्रुप करने हैं, या 2 करने हैं, या 10 करने हैं, वो हमें डेफिनेटली अभी पता है नहीं। तो हमें वो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दैट विल बी आवर स्टेप नंबर 4, कि यहाँ पे के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के यूजिंग एल्बो मेथड। तो एल्बो मेथड क्या होती है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट करना है, एंड उस नंबर ऑफ क्लस्टर को हम आगे मॉडल ट्रेन करेंगे, बिल्ड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्लस्टर्स एंड एज वी आर डूइंग के मींस क्लस्टरिंग, तो यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी लगेगी, sklearn डॉट क्लस्टर import k means। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लोड। तो आपको ये सारा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं कि क्लस्टर के अंदर के मीन्स वगैरह होता है, उसका स्पेलिंग, उसका कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में इफ यू जस्ट टाइप समथिंग, इट विल बी गिविंग यू सम सजेशंस एंड ऑल। एंड ऑफ कोर्स इवन इफ इट इज नॉट गिविंग सजेशंस, आपको रिमेंबर या फिर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल स्टेप्स ओनली। बाकी एल्गोरिदम के पैरामीटर्स क्या है, या फिर उसमें जो भी फंक्शन है उसके पैरामीटर्स क्या है, वो किस तरह से कौन सा वैल्यू कब देना है, सो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हर एक लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप sklearn scikit learn का डॉक्यूमेंटेशन देखोगे गूगल पे, तो हर एक फंक्शन के हर एक पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो किस तरह से यूज करना है वो होगा। लेकिन लॉजिक जो है वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, किस तरह से क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब क्या, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इन प्रैक्टिकल, दैट ऑल्सो यू शुड नो। बाकी का फॉरगेट, कि उसका नेम क्या होगा, लाइब्रेरी का सिंटैक्स वगैरह, वो आपको मिल जाएगा। ओके, इजीली मिल जाएगा। और सबका आप रिमेंबर करना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज है, यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो VS कोड इज बेटर आईडी विच विल गिव यू सम सजेशन, सो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। क्या हम फाइंड आउट करेंगे कि या फिर कौन सा वैल्यू ऑफ के इज बेटर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक रैंडमली बोल देंगे कि के का जो वैल्यू है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, हम 10 नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे, एंड उसका परफॉर्मेंस या फिर ये WCSS वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो WCSS वैल्यू का एक ग्राफ बनाएंगे, और उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वैल्यू के है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है उसको मैं 10 टाइम्स ट्रेन करूंगा विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। पहले मैं के इक्वल टू 1 लूंगा, एक क्लस्टर लूंगा, उस पे मैं ट्रेन करूंगा, फिर मैं फाइंड आउट करूंगा कि मुझे WCSS कितना मिल रहा है। फिर के का वैल्यू 2 लूंगा और उसको ट्रेन करूंगा, फिर WCSS का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो ये सब फाइंड आउट करके फिर मैं WCSS वर्सेस के का मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, नंबर ऑफ क्लस्टर्स का एक ग्राफ बनाऊंगा, और उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा कि कौन सा हमें बेटर चाहिए, एल्बो क्या होगा। तो वो प्रोबेबली आप मुझे बताओगे कि कौन सी वैल्यू के की होंगी, या फिर मैं कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ WCSS हम कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू नहीं होंगी। तो ये डेफिनेटली एक लिस्ट बनेगा। तो ये मैं उसको लिस्ट दूंगा, और इनिशियली इट विल बी एम्प्टी लिस्ट। ओके, नाउ हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मॉडल। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे यूज करना होगा फॉर लूप। फॉर लूप यूज करके क्या करेंगे, फॉर के इन रेंज, मिनिमम क्या होगा 1, मैक्स क्या होगा 11। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा है
तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेंगे? जस्ट आंसर इन द चैट सेक्शन कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ k और कहाँ से कहाँ तक वैरी करेंगे? इफ आई एम राइटिंग k in range 1 to 11, that means what will be the minimum value of k and what will be the maximum value of k? Okay, the Savni has answered correctly. 1 to 10 because the 11 will be ignored. तो ये हमने right from the strings, for loop, वाइल लूप सब जगह इवन द लिस्ट ट्यूपल उनका इंडेक्सिंग हमने किया है, उसके अंदर भी हमने देखा है और अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, किंतु सेकंड वाला जो है इट इज एक्सक्लूडेड. सो 1 to 10 दैट विल बी द रेंज फॉर दिस के एंड के उस तरह से वैरी करेगा ना. हम क्या करेंगे नाउ वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट और लेट्स से उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, के मीन्स बोल सकते हैं, याज इट इज के मीन्स, तो मैं उसको के मीन्स बोलता हूँ. एंड उसका जो यहाँ पे अब मुझे पैरामीटर देंगे. सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स? तो के नंबर ऑफ क्लस्टर्स. एंड रैंडम स्टेट, लेट्स से हम उसका रैंडम स्टेट डिफाइन करेंगे. सो रैंडम स्टेट इक्वल टू जीरो. ओके, तो एज यूजुअल तो रैंडम स्टेट क्या होती है कि अगर वो जीरो रैंडम स्टेट है तो अगर नेक्स्ट टाइम भी जीरो ही रैंडम स्टेट होगी तो डेफिनेटली अभी जो क्लस्टर बनेंगे वही क्लस्टर नेक्स्ट टाइम भी बनेंगे. अगर रैंडम स्टेट बदल दिया तो क्लस्टर भी बदलेंगे. इट कैन बी एनी नंबर, यू कैन पुट एनी इंटीजर नंबर वो हियर. नाउ दिस विल बी अवर मॉडल और द ऑब्जेक्ट. के मीन्स क्लस्टरिंग ऑब्जेक्ट. नाउ इसके ऊपर हम ट्रेन करेंगे हमारा डेटा. नाउ ट्रेन करने के लिए हमें सिंपली पता है कि एक फिट फंक्शन होता है. के मीन्स डॉट फिट और उसके अंदर हमें पास करना होगा इनपुट विच इज नाउ एक्स. ओके, तो दिस इज आवर इनपुट डेटा. Now we will train our model with number of clusters k. Now as it is for loop, तो initially the ये जो k है that will be 1 and with one cluster we will train our model, we will train our data. So this is our data which is the independent variables. So this is annual income and spending score. ये दो कॉलम होंगे. तो ये दो कॉलम यूज करके we will be training our data एंड विथ नंबर ऑफ क्लस्टर्स 1, तो एक ही क्लस्टर होगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ उसका WCSS, तो WCSS हमें मिलेगा. तो मुझे एक एक इसके अंदर डालना है. तो WCSS लिस्ट डॉट. अब मैं इसमें कौन सी मेथड यूज करूंगा जिसके कारण मैं उसके अंदर एक एक वैल्यू ऐड करता जाऊंगा. ओके, अगर मुझे उसके अंदर एक एक वैल्यू अपेंड करनी है या फिर ऐड करनी है वन आफ्टर द अनदर एक लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर का कौन सा मेथड should I use? Just answer in the chat. Okay, very correct. Append method. Okay, so Mangesh has answered correctly. Append. So there is append method in the list. By using that, I will be able to append the values. So append. And now here I need to calculate the WCSS value. Now आप बोलोगे WCSS value का जो slide में दिखाया था उसके अंदर तो बहुत लंबा फॉर्मूला था. Now this is the biggest formula. So इसके अंदर I am having this cluster, ये सब कुछ है. तो ये सब क्या implement करना पड़ेगा. तो डोंट वरी अबाउट इट. यहाँ पे आपको एक सिंपल एट्रीब्यूट है जिससे आपको इमीडिएटली पता चलेगा उसका WCSS value, that is this inertia attribute. So this inertia will calculate the WCSS value for this मॉडल जो कि हमने यहाँ पे ट्रेन किया. सो दिस इनर्शिया मेथड और दिस एट्रीब्यूट इज गोइंग टू कैलकुलेट द WCSS. तो वो जो लंबा फॉर्मूला आई हैव शोन टू यू इन द स्लाइड, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग दिस. नाउ अब यहाँ पे हमारी लिस्ट बन के तैयार है और अगर हम चाहे तो इस लिस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं. सो WCSS लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग entire list for 1 to 10. So I will be getting 10 number of values और हर एक वैल्यू अलग अलग होंगी. तो let's run this and we will check it out the number of values. See, this is our this thing and this is the 10 number of values for my, if I consider this cluster, let's say it is around 26 lakh. I think no, not 26 lakh, 2 lakh 69,000 is the value.
Then if I consider two cluster, then it is 1,81,000 value. If I cluster number of clusters are 3, 1,06,000. 4 clusters 73,000. 5 clusters 44,000. And after that for 6 cluster there is 37,000. So and for the 10 number of clusters we are getting 20,000 value. So as I said, if I increase number of clusters, definitely the WCSS value is going to decrease. But if I say number of clusters are equal to 1, the WCSS value is around 2,69,000 for our dataset, present dataset. And for 10 number of clusters, it is reduced to 20,000 only. So this is the reduction if I consider number of clusters. But should I go with 10 number of clusters? No, this is not the optimal value. Okay, we need to find it out the optimal value. तो ऑप्टिमल वैल्यू यहां से ये नंबर्स देख के पता नहीं चलेंगे. अगर इस नंबर को मैंने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, इफ आई प्लॉट देम इन टर्म्स ऑफ सम ग्राफ, तो मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे एल्बो है, कहाँ पे नी है, और वहां कहाँ से वो इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे एल्बो है उस ग्राफ का. तो वो एल्बो वाला जो वैल्यू होगा, दैट विल बी माई WC SS value, or which is of my interest, and that will be the k, that point will be the k. तो let it be. तो मैं यहाँ पे इसको फिनल कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन प्लॉटिंग द रिजल्ट. तो रिजल्ट प्लॉट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द PLT डॉट प्लॉट फंक्शन, एंड उसको मुझे x देना होगा. तो x में मुझे रेंज चाहिए, वो 1 to 10 नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए. तो डेफिनेटली इफ आई डायरेक्टली प्लॉट WCSS, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा. ओके, द इनिशियल पॉइंट विल बी जीरो. इफ आई सिंपली राइट WCSS लीस्ट, अगर मैं इस तरह से इसको प्लॉट करूंगा, तो एक्स एक्सिस पे मिनिमम इंडेक्स क्या होगी? जीरो. दैट कुड बी द प्रॉब्लम. सो दैट्स हाउ मैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट वो दूंगा, और दैट विल बी रेंज 1 to 11. Okay, right? So plot this thing, plt.plot range 1 to 11. That means on the x-axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And on the y-axis ये 10 values. तो पहला ये होगा, फिर this one, फिर this one, फिर this one, and this will be the last value. So likewise, we will be getting on the uh, x-axis 1 to 10, and on the y-axis these values will be plotted. Now let's okay. Now इसको हम थोड़ा टाइटल विटल देंगे, so that हमें अच्छा लगेगा कि वो क्या है exactly. So PLT dot title. तो टाइटल आप दे सकते हो कि टू फाइंड द एल्बो मेथड. यहाँ पे मैं देता हूँ द एल्बो मेथड टू फाइंड number of clusters. In short, the value of k. K find out करना है. K means clustering का k find out करना है. And then plt dot x label. तो यहाँ पे x label देना है कुछ. तो इसका जो x label है, let's say number of clusters होंगे, number of clusters, इसको मैं बोलूँगा k. And y label भी दे देंगे. So plt dot y label, y label होगा WCSS, ये उसका वैल्यू है. And of course at the end plt dot show. Now it will be very much clear from this कि हमें k का कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा. So if I run this, I will be getting this WCSS value on the y-axis, and on the x-axis I will be getting the number of clusters, and that will start from 1 to 10. और हम फाइंड आउट करेंगे एल्बो ऑफ आवर कर्व. तो मुझे एक कर्व मिलेगा या फिर एक लाइन मिलेगी, उस लाइन का हम एल्बो फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट एल्बो विल बी अवर वैल्यू k, और वो जो एल्बो पॉइंट होगा दैट विल बी द k वैल्यू. So let's run this, and at the end we are expecting a graph. So this is the graph. Okay. So अगर इस ग्राफ को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, तो अगर ये जब भी k का वैल्यू 1 था, the value was around 2,79,000. Okay. So this was the highest value. And when it was equal to 2, the value was around 2 lakh something.
and when it was around 3 the value was around, let's say this was 1 lakh something. When it was 4 the value was this much. When it was 5 the value was this much. And for 6, 7, 8, and 9 and 10, so this is how the value is there. Can you tell me what can be the optimal value of k from this graph, so that the WCSS value is minimum and the number of clusters are also optimal? So what can be the optimal value of k? Just comment using this graph. Okay, 3 or 5, that's the answer. So this can be the 5 could be the better. Okay, it's 5. Okay, Sauni and Mangesh has answered correctly. The 5 will be better. Okay, because this 5 is around 50,000 and this is 1 lakh plus, so this 5 will be the better. So this is having the elbow at 5, so it's minimum. And from here actually there is a drastic change, sudden increase in the WCSS. And if you consider this value from here, even if it is decreasing, but there is no major change in the WCSS. तो इस पॉइंट के आगे अगर मैं क्लस्टर की संख्या इंक्रीज भी करूंगा तो भी मुझे ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन WCSS के अंदर नहीं मिल रहा है। दैट्स हाउ वी कॉल इट एज एल्बो। तो इसके आगे ज्यादा वेरिएशन तो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, तो इसके आगे के क्लस्टर लेके कुछ फायदा ही नहीं है। ओके, इसके ऊपर का अगर मैं लेता हूँ लेट्स से 3 और समथिंग, तो यहाँ पे स्टिल देर इज ड्रास्टिक चेंज इन WCSS। तो अगर यहाँ पे मैं 5 कंसिडर करूंगा तो इसके आगे मैं क्लस्टर इंक्रीज भी करूंगा तो भी मुझे ज्यादा कोई चेंज, मेजर चेंज WCSS के अंदर मिल नहीं पा रहा। तो व्हाई शुड आई इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स? सो नो नीड। सो इन दैट केस द ऑप्टिमल वैल्यू विल बी 5। तो अब हमें पता चला है कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि उतने नंबर ऑफ क्लस्टर को हम हमारा डेटा को ट्रेन करेंगे और हम आउटपुट के वो जो कैटेगरीज है वो फाइंड आउट करेंगे एंड विल बी गेटिंग आवर रिजल्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो फाइनली हम दो चीजें यहाँ पे करेंगे इस इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। ओके, सो दिस वाज आवर स्टेप नंबर 4। आगे की जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा विच विल बी स्टेप नंबर 5। इन दिस स्टेप मैं दो चीजें करूंगा, पहले तो ट्रेनिंग द मॉडल एंड जनरेटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे आई विल बी फाइंडिंग आउट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ कैटेगरी और द क्लस्टर, तो उसका नंबर होगा कि यहाँ पे मुझे पता चला है कि आई नीड टू फाइंड इट आउट ओनली 5 नंबर ऑफ क्लस्टर। तो 5 ग्रुप्स हमारे बनेंगे। ओके, दैट्स वेरी करेक्ट, 5 ग्रुप बनेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन उनका जो नंबर होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से उसका नंबरिंग होगा। तो कौन सा कस्टमर 0 के ग्रुप को बिलोंग करेगा, कौन सा कस्टमर 1 को बिलोंग करेगा, कौन सा 2 को बिलोंग करेगा, उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कस्टमर, इसका ग्रुप 0 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी डूइंग दैट। एंड नाउ यहाँ पे फिर से विल बी क्रिएटिंग द k means object। so k means इक्वल्स टू के मीन्स, और यहाँ इसके अंदर विल बी गिविंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स इक्वल टू 5। नाउ यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे पता है, प्रीवियस केस में मैं यहाँ पे रैंडमली 1 से लेके 10 तक उसको आई हैव एक्सिक्यूटेड एंड आई गॉट द वैल्यू। बट नाउ यहाँ पे मुझे परफेक्टली पता है कि मुझे कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स देने होंगे। एंड रैंडम स्टेट ऑफ कोर्स 0। ओके, एनी नंबर 2 3 आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो रैंडम स्टेट को। इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्यूरेसी एंड बाकी के पैरामीटर कुछ नहीं है। खाली ये रैंडम सीड जनरेट करेगा जिससे आप जितने नंबर ऑफ डेटा को रैंडमली क्लस्टर में करोगे कन्वर्ट, वो अलग अलग रैंडमली जो भी चूजिंग होगा सेंट्रॉइड्स वगैरह वो उस पर डिपेंड करेगा। नाउ नाउ यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। सो लेट्स से वाई प्रिडिक्शन इक्वल्स टू
के मीन्स डॉट, अगर मैं फिट यूज करूंगा ना, फिट एक्स, तो क्या करेगा, इसको एक ट्रेन करेगा, इसमें प्रिडिक्शन नहीं करेगा, इट विल बी जस्ट ट्रेनिंग फिटिंग, तो उसको प्रिडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन यूज करूंगा फिट प्रिडिक्ट, तो ये दो चीजें करेगा। पहले ये ट्रेन भी करेगा, और ट्रेन होने के बाद उसका जो भी प्रिडिक्शन होगा, दैट प्रिडिक्शन ऑल्सो बी देयर, सो दिस विल बी वाई प्रिडिक्शन। और सिंपली प्रिडिक्शन यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे के मीन्स डॉट फिट यूज किया, तो इट वॉज नॉट प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, and if I use simply predict, then it will predict the output only, and if I use fit predict, then वो fitting भी करेगा, prediction भी करेगा, एक ही function के अंदर दो काम होंगे। तो that's how I am using this function. Now this will be a fit predict, तो पहले उसको ट्रेन करेगा और उसके जो आउटपुट से वो प्रिडिक्ट करेगा। नाउ विल से कि ये एग्जैक्टली exactly क्या करेगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे ये वाई प्रोडिक्शन, तो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने डेटा सेट के अंदर क्रिएट किया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ग्राफ को। तो ये हमारे ग्रुप्स बने अभी 5, और अपने डेटा सेट के अंदर अराउंड 200 नंबर ऑफ एंट्रीज है। तो जो पहली वाली जो एंट्री है अपने डेटा सेट के अंदर, उसका ग्रुप होगा, वो कस्टमर का कैटेगरी होगा 4। तो यहाँ पे अगर आप ये पहले 5 हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवाए हैं, इफ यू सी हियर, तो ये जो पहला वाला कस्टमर है जिसका आईडी है 1, वो मेल है, 19 उसका एज है, और उसका इनकम जो है वो 15K डॉलर है, एंड उसका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो 39। तो ये वाला जो कस्टमर है उसकी कैटेगरी है 4, तो ये 4 नंबर के क्लस्टर में या ग्रुप का है। दूसरा जो कस्टमर है जिसका ये 15K उसका ये है सैलरी, और उसका स्पेंडिंग कोर 81 है, वो वाला कस्टमर 3 नंबर ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो ऐसे 0 1 2 3 4 इस तरह से हमने 5 ग्रुप बनाए हैं, और हर एक कस्टमर को हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर या फिर ग्रुप आईडी दिया है। तो यहाँ पे टोटल 200 नंबर ऑफ कस्टमर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 200 नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो हर एक कस्टमर का कौन सा ग्रुप है वो यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट कर लिया। तो अगेन आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन इट, तो इट्स ओके कि इस तरह से ये प्रिडिक्ट कर रहा है, टोटली फाइन विद दैट, आई एम ओके विद दिस रिजल्ट। नाउ यहाँ पे बात आती है कि यहाँ से तो ठीक है, ये हमें पता चलेगा, और इससे हम क्या कर पाएंगे कि जो कस्टमर्स हमारे पास है उनको हम अलग अलग सॉर्ट कर लेंगे। मतलब अगर मेरे पास ये मॉल कस्टमर सीएसवी का अराउंड 200 नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे है, आई एम हैविंग अराउंड 200 नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो इसमें से लेट से 50 कस्टमर का मैं अलग सीएसवी बना सकता हूँ, दूसरे 50 कस्टमर का अलग सीएसवी, तीसरे 50 का अलग, चौथे 50 का, और पांचवे 50 का अलग अलग सीएसवी फाइल्स में क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर एक अलग कैटेगरी की है, ये अलग कैटेगरी की, दिस इज अनदर कैटेगरी, दिस इज डिफरेंट कैटेगरी। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू। अगर मुझे ये सब कुछ पता चला तो वो अलग अलग सीएसवी बना सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। एंड दूसरा हम क्या करेंगे कि अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे रिजल्ट का, so कि किस तरह से हमें क्लस्टर मिलेंगे। सो दैट विल बी स्टेप नंबर 6, विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। हम रिजल्ट को देखेंगे। नाउ रिजल्ट को देखने के लिए हमें एज यूजुअल पता है कि हमें डेफिनेटली यहाँ पे प्लॉट करना होगा एक ग्राफ। तो इस टाइम दिस टाइम वी विल बी प्लॉटिंग अ स्कैटर प्लॉट, क्योंकि जो मैंने स्लाइड्स में आपको दिखाया दैट वाज हैविंग स्मॉल स्मॉल डॉट्स, तो उसी तरह से हम यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। तो plt डॉट स्कैटर प्लॉट, तो यहाँ पे x एंड y होना चाहिए। तो हमारा x क्या है, हमारा x है कि नंबर ऑफ दिस थिंग, x इज इनकम, उस बंदे का इनकम जो है वो x है, और y क्या है, उस बंदे का एक्सपेंसेस, उसने कितने एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस। और अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग जो ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर से प्लॉट करेंगे, उसको अलग अलग कलर दे देंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन से क्लस्टर किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ठीक है, वो अलग अलग कलरिंग हम उसको करेंगे। तो plt डॉट स्केटर, तो पहले हमें चाहिए एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जो है, ओके, द एनुअल इनकम जो है वो है एक्स का, जो क्योंकि ये एक्स है ना अपना, ओके, क्योंकि अपने पास अभी एक्स है, एक्स के अंदर दो कॉलम है 3 और 4,
तो एक्स के अंदर सिर्फ ये दो कॉलम है, तो एनुअल इनकम है एक्स ऑफ ऑल रोज एंड जीरोथ कॉलम। ओके, ये एनुअल इनकम है। और उसका जो एक्सपेंस है या फिर स्पेंड स्कोर है वो है एक्स ऑफ ऑल रोज फर्स्ट इंडेक्स ब्लैंक एंड फर्स्ट कॉलम। ओके राइट, ये अपना है, इस तरह से अपना है। लेकिन हमें अगर मैं इस तरह से अगर उसको स्कैटर प्लॉट करूंगा तो मुझे x का जितना भी डेटा है 200 के 200 प्लॉट हो जाएंगे। अगर मैं इस तरह से प्लॉट करूंगा तो मेरे 200 के 200 प्लॉट हो जाएंगे। तो फिर मैं अलग अलग क्लस्टर किस तरह से दिखाऊंगा? तो मुझे x में से सारे रोज नहीं चाहिए। अगर मैं कोलन लिखूंगा दैट मीन्स ऑल दी रोज, लेकिन सारे रोज मुझे नहीं चाहिए। मुझे वही रोज चाहिए जिसके अंदर y प्रेडिक्शन जो है, ये जो प्रेडिक्शन आया है उसका वैल्यू लेट से 0 है तो दैट विल बी क्लस्टर 1। जिसका वैल्यू 1 है दैट विल बी क्लस्टर 2। जिसका वैल्यू 2 है दैट विल बी क्लस्टर 3। तो मुझे ना ये सारे रोज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जहां पे y अंडरस्कोर प्रिडिक्शन इक्वल्स टू 0 है, ऐसे ही रोज मुझे चाहिए। और सेम थिंग यहां पे भी y ऑफ प्रिडिक्शन जहां पे इक्वल टू 0 है दैट मीन्स क्लस्टर 0। जहाँ पे ये 0 आ रहा है ना वही वाला x का डेटा लेना है। लेट्स से यहाँ पे अगर नीचे आप रिजल्ट्स में देखोगे तो विल सी कि यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे आए, तो यहाँ पे पूरे डेटा सेट में लेट्स से ये 20 नंबर ऑफ थिंग्स है जहाँ पे 0 आ रहा है। तो वही चाहिए मुझे सिर्फ x में से। तो y प्रेडिक्शन जहाँ पे 0 आया है वो वैल्यू लेना है, एंड दैट इज 0। 0 लिया तो मुझे इनकम मिलेगी और 1 लिया तो मुझे उसका एक्सपेंस मिलेगा। तो इसका ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम स्कैटर प्लॉट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। फिर उसका साइज ऑफ दैट जो डॉट बनेगा ना स्कैटर प्लॉट में, हमने देखा है मैट प्लॉट, इफ यू रिमेंबर मैट प्लॉट लाइब्रेरी, तो एस मतलब क्या, साइज ऑफ दैट डॉट। तो उसका साइज लेट से हमारे हिसाब से हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका साइज 100 देता हूँ, 100। देन सी उसका कलर देना है, तो पहले का कलर जो है वो मैं देता हूँ ब्लू कलर। ओके, अलग अलग कलर देंगे। और उसका जो लेबल है, लेबल, तो दैट लेबल हम इसको देंगे क्लस्टर 1। ओके, इसको मेरे हिसाब से क्लस्टर 1 करके हम एक लेबल दे देंगे, क्लस्टर 1। ओके फाइन। तो ये हो गया अपना क्लस्टर 1। क्लस्टर 1 कहाँ पे, मतलब ये 0 जहां पे वाई प्रेडिक्शन 0 आया दैट मीन्स कस्टमर का ग्रुप 0। तो उस वाले लोकेशन पे उस वाले जो एक्स के वैल्यूज है वही हम लेंगे और उनको प्लॉट कर देंगे और उनको ब्लू कलर में प्लॉट करेंगे और उनका साइज 100 होगा। तो हम इसको फिर से आई एम कॉपी एंड पेस्ट, तो अगेन आई विल बी कॉपिंग दिस थिंग, पेस्ट हियर, कॉपी पेस्ट, क्योंकि 5 है हमारे क्लस्टर। दिस इज क्लस्टर 1, तो ये हम अपना क्लस्टर 2 हो जाएगा, ये अपना क्लस्टर 3 हो जाएगा, दिस विल बी क्लस्टर 4 एंड दिस विल बी क्लस्टर 5, राइट। दिस इज अगेन क्लस्टर। लेकिन अगर ये ब्लू कलर में किया है तो हम इसको ग्रीन कलर में कर देंगे, फिर हम इसको रेड कलर में कर देंगे। लाइक दिस वी कैन मेक, हम इसको लेट से ब्लैक कलर में कर देंगे, न्यू वाला जो है ब्लैक कलर, एंड लेट्स मेक इट पिंक कलर। जो बचा हुआ है उसको पिंक कलर में कर देंगे। तो अलग अलग कलर्स हमने डिफाइन किए, उनका सबका साइज एक ही होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट विल बी ए सेम साइज, इट्स टोटली फाइन। तो वन इज ब्लू, अनदर इज ग्रीन, रेड, देन येलो, ब्लैक एंड पिंक, इन सारे कलर्स में वो पॉइंट प्लॉट होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ पे ये था क्लस्टर 1, इसलिए वाई प्रेडिक्शन का वैल्यू वहां पे 0 होना चाहिए, वही वाले हम डेटा यूज करेंगे। यहाँ पे वाई प्रेडिक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, ये फर्स्ट क्लस्टर। यहाँ पे वाई प्रेडिक्शन जहां जहां पे 2 है वो लेना है, यहाँ पे वाई प्रेडिक्शन जहां जहां पे 3 है वो लेना है, एंड जहां पे वाई प्रेडिक्शन 4 है वो लेना है। सिमिलरली यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो ये दिस विल बी क्लस्टर 5। जहाँ ये 4 है मतलब ये क्लस्टर 5, 0 है मतलब क्लस्टर 1, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 मीन्स
cluster 0 and 1 means cluster 2. ओके, 0 मीन्स क्लस्टर 1, 1 मीन्स क्लस्टर 2, तो उसका इंडेक्सिंग उस तरह से होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा तो क्लस्टर 1 2 3 4 5, या फिर आप यहाँ पे क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 इस तरह से भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लेट से वही करते हैं, क्लस्टर 0, क्लस्टर 1 कंफ्यूजन हटाने के लिए, क्लस्टर 2 and cluster 3 and cluster 4. So this will be now more अंडरस्टैंडेबल, ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हमारा स्कैटर प्लॉट यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। सो दिस हाउ द स्कैटर प्लॉट विल लुक लाइक। ओके, नाउ फिर हम इसको प्लॉट को शो भी कर सकते हैं, एंड उसके हम क्या करेंगे, कुछ लेबल्स एंड टाइटल्स वगैरह उसको देंगे और फिर प्लॉट को शो करेंगे। तो नाउ विल बी गिविंग सम टाइटल टू अवर ग्राफ। सो plt डॉट टाइटल, टाइटल में कुछ लेबल देना होगा, तो यहाँ पे हम लेबल देंगे कि क्लस्टर्स या फिर कस्टमर्स, कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर के अलग अलग ग्रुप्स है, तो ये अपना टाइटल हो गया। फिर हम इसको एक्स लेबल भी देंगे। सो plt डॉट एक्स लेबल, तो आपको तो पता ही एक्स लेबल क्या है, एक्स लेबल है एनुअल इनकम, और वो अपना के डॉलर्स के अंदर है, तो दिस इज द इन के डॉलर्स, एनुअल इनकम इज इन के डॉलर्स। एंड नेक्स्ट इज plt डॉट वाई लेबल, वाई लेबल इज हमें पता है कि स्पेंडिंग स्कोर उसका, okay, and that score is actually varying from 1 to 100, right? Now हम उसको लीजेंड भी दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल दिए हैं, तो बेस्ड ऑन दैट लेबल वी कैन हैव द लीजेंड्स आल्सो। सो plt डॉट लीजेंड, और यहाँ पे उसको शो करेंगे हम, एंड plt डॉट शो। सो नाउ इट विल बी मोर क्लियर। तो यहाँ पे अपना ग्राफ बनेगा, अलग अलग कलर में अलग अलग कस्टमर्स दिखेंगे और उनको ये टाइटल वगैरह सब कुछ मिलेगा। नाउ लेट्स रन दिस। Okay, so this one is the first graph, and this one is the second interesting graph जो हमें यहाँ पे मिला है। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ग्राफ। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अलग अलग क्लस्टर्स हमने बनाए हैं। दिस इज ब्लैक कलर्ड वन क्लस्टर, this is green colored cluster, this one is cluster, this one is the fourth and this is the fifth cluster। तो यहाँ पे एनुअल इनकम और उनका स्पेंडिंग स्कोर के हिसाब से, तो कुछ कस्टमर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका एनुअल इनकम, जो पिंक कलर के कस्टमर्स हैं वो इस तरह से कस्टमर है, और ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका एनुअल इनकम भी कम है और वो जो स्पेंड कर रहे हैं, जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं वो भी कम है, तो वो खर्चा भी कम कर रहे हैं और उनका एनुअल इनकम भी कम ही है। लेकिन कुछ कस्टमर जो कि ब्लैक कलर के हैं, वो ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका एनुअल इनकम तो कम है लेकिन उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उनका खर्चा देखोगे तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ग्रीन कलर के जो कस्टमर है उनका एनुअल इनकम मॉडरेट है, मतलब मिड है, एंड उनका खर्चा भी मिडल ही है। तो वो एक अलग टाइप के कस्टमर्स यहाँ पे हो गए जिनका एनुअल इनकम भी मॉडरेट है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, और उनका खर्चा भी कम है, मॉडरेट है, कम नहीं बोल सकते, मॉडरेट है, मॉडरेट खर्चा वो कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि उनका एनुअल इनकम तो इतना ज्यादा है लेकिन उस कंपैरिजन में उनका जो खर्चा है वो काफी कम है, वो जो स्पेंडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी परचेस कर रहे हैं मॉल में से वो काफी कम है, वो कस्टमर ब्लू कलर वाले हैं। तो ये जो ब्लू कलर वाले कस्टमर्स हैं उनका तो इनकम तो काफी है लेकिन वो जो स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट, जो परचेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी लेस। और जो रेड कलर के कस्टमर्स हैं वो ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका इनकम भी ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स उनका जो भी खर्चा है या फिर जो स्पेंड कर रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं मॉल से, वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के कस्टमर्स मिल चुके हैं। तो पहले कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनका इनकम भी कम है, खर्चा भी कम है। कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि इनकम कम होने के बावजूद उनका जो खर्चा है
वो जो स्पेंड कर रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं मॉल से वो ज़्यादा है। और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनका इनकम ज़्यादा है लेकिन वो खरीदी या फिर जो परचेस वो काफ़ी कम कर रहे हैं। तो वो वाले कस्टमर को हम अलग से टारगेट करेंगे, पिंक वाले कस्टमर को हम अलग से मार्केटिंग के ऑफर्स भेजेंगे, ग्रीन वाले कस्टमर को हम अलग मार्केटिंग के ऑफर्स भेजेंगे, रेड वाले कस्टमर्स को अलग मार्केटिंग के ऑफर भेजेंगे, ब्लैक कलर के कस्टमर को अलग हम ऑफर्स दे देंगे। सो दिस इज हाउ द क्लस्टर्स कैन बी फॉर्म्ड और उनका रिजल्ट हमें इस तरह से विजुअलाइज कर पाएंगे। नाउ हम बात कर रहे थे कि सेंट्रॉइड की भी, कि हम इसको सेंट्रॉइड्स भी प्लॉट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इस वाले कस्टमर्स को उसका सेंट्रोइड की सेंटर वैल्यू क्या है, हर एक को जो प्लॉट मिला है उसका सेंटर वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो सेंटर वैल्यू भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वो भी एक हम स्कैटर प्लॉट ही बनाएंगे जिसके अंदर हमें सेंटर वैल्यू चाहिए। तो सेंटर वैल्यू एक्स एंड वाई, ये एक्स हमारे इनपुट से नहीं आएगा, वो हमने कैलकुलेट करा है। तो के मीन्स डॉट क्लस्टर सेंट्रोइड, ओके, और क्लस्टर सेंटर्स। और जो क्लस्टर सेंटर्स है उसके हमें ऑल रोज चाहिए, लेकिन जीरोथ जीरोथ मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और वाई के लिए यही सब चीज लेकिन फर्स्ट हमें लेना है। तो ये सेंटर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेंटर चाहिए हमें, वो सारे क्लस्टर के जितने भी क्लस्टर है उनके सेंटर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन दिस विल बी फर्स्ट एक्स एंड वाई, ओके। दिस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इट। एंड उसका जो साइज है ना, प्रीवियस केस में हमारा 100 साइज था, तो अब हम उसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा 200 कर देंगे, क्योंकि सेंट्रोइड तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। एंड उसका जो ये सेंट्रोइड भी हो गया, चलो अभी उसका कलर, कलर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलर अलग से दिखना चाहिए। तो कलर हम इसको क्या करेंगे, कुछ अलग कलर, पर्पल कलर देंगे, पर्पल कलर, ओके। तो इस तरह से वो दिख जाएगा कि पर्पल कलर के अंदर हमें उसका दिखाएंगे, और उसका लेबल हमें कुछ तो देना पड़ेगा। तो लेबल को हम सेंट्रोइड दे देंगे नाउ, देन लेबल इक्वल टू सेंट्रोइड या फिर सेंटर। तो जो सेंटर सेंट्रोइड में बोल रहा था, इन स्लाइड्स वी हैव डिस्कस दैट थिंग, तो वो भी हम यहाँ पे विजुअलाइज कर पाएंगे अब यूजिंग दिस वन। तो फिर से रन करते एक बार, एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस by the elbow method, and now you can see the centroids, okay, in this graph। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो ये जो पर्पल वाले डॉट्स है, जो बड़े डॉट्स लग रहे हैं थोड़े से, 200 का उनका साइज है। सो दिस इज अवर सेंट्रोइड वैल्यू, दिस इज अनदर सेंट्रोइड, दिस इज अगेन द सेंट्रोइड, दिस इज द सेंट्रोइड ओवर हियर, दिस इज द सेंट्रोइड फॉर दिस ओवर हियर। तो काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स एट द एंड हमें मिले। तो पहले तो हमने अलग अलग सेंटर्स, सेंट्रोइड्स और के मीन्स के नंबर को फाइंड आउट किया। तो हमें पता चला कि 5 नंबर ऑफ कैटेगरीज हमें बनानी चाहिए। अगर आप 5 नंबर ऑफ कैटेगरीज बनाते हो तो विल बी गेटिंग द परफेक्ट रिजल्ट। ना चलो ये हो गए, ये चीज हमें डेटा विजुअलाइजेशन इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है इम्पोर्टेंट थिंग की। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर क्या रियल वर्ल्ड डेटा इनपुट दिया तो क्या हम उसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो स्टेप नंबर नेक्स्ट, दैट विल बी स्टेप नंबर 7। सो दिस इज प्रिडिक्शन और रियल टाइम डेटा। तो अब ये बात होती है, ये हमने यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर लिया, हमारा मॉडल बिल्ड कर दिया। नाउ और मॉडल इज ट्रेन्ड एंड मॉडल कैपेबल है कि वो कैलकुलेट करेगा कि कौन सा कस्टमर कौन से कैटेगरी का है। तो अगर ये सब कुछ करने के बाद, लेट से मेरे पास 2-3 साल का डेटा पड़ा हुआ है कस्टमर्स का, जिसके ये सारे कस्टमर्स है, 200 नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो कि हमारे शॉप में आते हैं, और उन कस्टमर को अंडरस्टैंड करके मैंने उनके अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए, और उनका मैंने ये मशीन लर्निंग लगा के मुझे पता चला कि कौन से कस्टमर कौन से कैटेगरीज के हैं, उनके उस हिसाब से मैं उसको प्रमोशन करूंगा। लेकिन अगर आज की डेट में ये सब कुछ होने के बाद एक नया कस्टमर आता है जो कि मेरे डेटाबेस में है नहीं, क्योंकि वो 200 नंबर ऑफ कस्टमर है ही, मेरे प्रीवियस कस्टमर है, एक नया कस्टमर आता है और उसकी एनुअल इनकम और उसकी एस्टिमेटेड सैलरी एंड उसका स्पेंड, उसने आज कितना परचेस किया वो अगर मुझे पता चलता है,
तो वो कस्टमर में कौन से ग्रुप का होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए हमें रियल टाइम प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि जो मॉडल हमारा ट्रेन हुआ है, उस मॉडल को हम नया डेटा दे देंगे और हम पूछेंगे कि ये कस्टमर कौन से कैटेगरी का है? कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है, 3 का है या फिर एनी अदर कैटेगरी का है? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। तो वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें रियल डेटा पे प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि कस्टमर का जो भी इनकम है वो यूजर से इनपुट लेंगे, एक फॉर्म फिलअप करवा के लेंगे। तो यहाँ पे इनकम करके एक वेरिएबल लेंगे, इनकम इक्वल्स टू इंट इनपुट। हम यहाँ से मांगेंगे कि कस्टमर को एंटर द एनुअल इनकम, एंटर द एनुअल इनकम एंड दैट विल बी इन के डॉलर्स के अंदर होंगी। ओके, तो ये एनुअल इनकम हम कस्टमर को बोलेंगे कि आप एंटर करो। फिर हम उसका स्पेंडिंग स्कोर, स्पेंडिंग स्कोर या फिर स्पेंड हम बोलेंगे उसको सिंपल। तो इंट इनपुट एंटर द स्पेंडिंग स्कोर, एंटर द स्पेंडिंग स्कोर एंड दिस स्कोर विल बी 1 to 100 के बीच में होगा कि कितना खर्चा ये कर रहा है। तो इस तरह से, तो अगर मुझे इस तरह से एक नया कस्टमर आता है जिसने सम अमाउंट पे स्पेंड किया है और उसका इनकम इतना इतना है, तो ये वाला कस्टमर कौन से कैटेगरी का है? वो क्या क्लस्टर 0 का है, क्लस्टर 1 का है, क्लस्टर 2 का है, ग्रुप 1 2 3 4 में से 0 1 2 3 4 में से कहाँ पे वो बिलोंग करता है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इससे मैं टेस्ट सैंपल क्रिएट करूंगा, टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल। तो एज यू नो कि हमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल थिंग क्रिएट करनी पड़ेंगी, जैसे हमने प्रीवियस केस में भी किया था, इनकम कॉमा स्पेंड। ओके, तो ये हो गया अपना टेस्ट सैंपल। तो जैसे मेरा टेस्ट सैंपल बनेगा, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करेंगा क्लस्टर क्लस्टर आईडी। ओके, या फिर कस्टमर ग्रुप। तो मैं यहाँ पे क्लस्टर आईडी नेम देता हूँ वेरिएबल को, क्लस्टर आईडी इक्वल्स टू के मीन्स डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे टेस्ट सैंपल इनपुट हुआ है मेरा, टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल। नाउ द टेस्ट सैंपल इज इनपुट। नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट, प्रिंट प्रिडिक्टेड ग्रुप और कस्टमर इज। ओके, तो जो भी है वो, और वो जो भी ग्रुप है कॉमा क्लस्टर आईडी। ओके, व्हाट वी नीड टू प्रिंट, क्लस्टर आईडी, दैट्स इट। तो अगर एक नया कस्टमर यहाँ पे आता है तो उसका जो भी क्लस्टर आईडी होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिंट ओवर हियर। तो लेट्स रन दिस एंड विल फाइंड इट आउट कि क्या इसका बनेगा। तो ये हमारा एल्बो मेथड हो गया, जिससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ के पॉइंट्स कितने। तो यहाँ पे हमने के पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ क्लस्टर्स 5 यहाँ पे सिलेक्ट करा है। इसको क्लोज करेंगे, ये हमारे क्लस्टर्स मिल गए जिसमें अलग अलग कलर से हमने क्लस्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं, एंड अगेन उसके सेंट्रॉइड्स भी हमने वहाँ पे डिस्प्ले करे हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। एंड एट द एंड नाउ इट इज आस्किंग टू मी एंटर द एनुअल इनकम ऑफ कस्टमर इन के डॉलर्स। तो लेट्स से आई यहाँ पे मैं पुट अप करूंगा कि 15 है उसका एनुअल इनकम। देन इट इज आस्किंग कि उसका स्पेंडिंग स्कोर क्या है, वो इनपुट करो आप। तो लेट्स से स्पेंडिंग स्कोर मेरा 39 है, 39 आउट ऑफ 100। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा तो मुझे पता चला कि प्रेडिक्टेड ग्रुप फॉर दैट कस्टमर इज 4। तो ये वाला जो कस्टमर है वो ग्रुप 4 को बिलोंग करता है, ये ग्रुप 4 कैटेगरी का कस्टमर है। तो जैसे ही नया कस्टमर उस वाले शॉपिंग मॉल में आएगा, तो उसका जो ओनर है या फिर जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है, वो प्रिडिक्ट कर पाएगी कि ये कस्टमर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, और जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसको प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग ऑफर्स, वो जो कुछ भी है स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो हम यूज करेंगे। सिमिलर थिंग ये अमेजॉन और आगे जो भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट से वो यूज़ करते हैं। आप अब बोलोगे कि ये जो अमेज़न वगैरह है उनको कैसे पता कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है या फिर आपका स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्कोर। तो ठीक है, क्योंकि वो आप अमेज़न से जो भी खरीदी करोगे या फिर जो भी परचेस करोगे, उनको आपका स्पेंडिंग स्कोर पता चल जाएगा कि कितना है।
लेकिन आप बोलोगे उनको कैसे पता कि आपका एनुअल इनकम कितना है? तो उनको सब पता है। ओके, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर जॉब सर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अमेजोन को, गूगल को सब कुछ पता है आपके बारे में। टोटल इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग गूगल नोज अबाउट यू। आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस तो गूगल का ही है, उनको पता ही है। लेकिन गूगल नोज एवरीथिंग। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक यूज़ करते हो, सब कुछ आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो। आपका इंटरेस्ट क्या है? आप किस टाइप के, आपका मतलब किस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, वो भी उनको पता है, सब कुछ पता है। आप किस तरह से पोस्टिंग करते हो, आपका मदर टंग क्या है, सब कुछ। एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज़ नोन टू गूगल। और ये सारे जो भी ये मास्टरमाइंड्स है लाइक अमेज़न एंड ऑल, उनको सब कुछ पता है। तो ये जो एनुअल इनकम वगैरह, ये दैट्स नॉट द बिग डील कि उनको पता नहीं है। आपका डेटा ऑनलाइन है तो उनको सब कुछ पता है। नाउ प्राइवेसी जैसी चीज़ अब यहाँ पे नहीं रही है, एज एज पर एज दिस ऑनलाइन इज कंसर्न। सो आप गूगल ये सब कुछ यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनका प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो हम हार्डली उसको रीड करते हैं। तो उसके हिसाब से वो सब कुछ होता है। इवन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, तो उनके टर्म्स एंड पॉलिसी में ये होता है कि दे विल बी यूजिंग योर कैमरा, दे विल बी यूजिंग योर लोकेशन, दे विल बी यूजिंग योर कॉन्टैक्ट्स। दैट मीन्स क्या? वो आपकी लोकेशन यूज़ कर रहा है ऐप, दैट मीन्स आप अभी इस वक़्त कहाँ पे हो, वो सब कुछ उनको पता है। शायद आपके घर वालों को पता नहीं कि आप कहाँ पे हो, लेकिन जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो आपके मोबाइल फ़ोन में, उनको पता है कि आप एग्ज़ैक्टली कौन-सी लोकेशन पे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे। अगर आप गूगल पे से, फ़ोन पे से किसी रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हो, तो अगेन द गूगल पे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गूगल, तो उनको गूगल को पता है कि वो आप कहाँ पे हो। ओके, तो एट व्हाट लोकेशन यू आर। तो अमेज़न पे है, कहाँ पे हो, कौन से रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो, सब कुछ उनको पता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्केटिंग प्रमोट करेंगे। वो जो कुछ भी आपको मेल्स आते रहते हैं, डेली आपको मेल आते हैं प्रमोशंस के, डेली आपको मैसेजेस आते हैं प्रमोशंस के, वो ऐसे ही नहीं आते। वो एक्चुअली आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ पे हो, कौन-सी जगह पे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो, सब कुछ उनको पता है, उस बेसिस पे। और इवन आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, उनका भी डाटा उनके पास चला जाता है। अगर आप उनको वो अगर एक क कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करते हो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रीड करने को अलाउ करते हो, तो दैट मीन्स आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का डाटा उनके पास होता है। कैमरा अगर आप अलाउ करते हो, तो आप जो भी फ़ोटोग्राफ्स पिक करते हो, वो सारे फ़ोटोज़ उनको एक्सेस उसको मिल जा सकता है, या फिर गैलरी हो, या फिर जो भी फ़ाइल्स का जो भी एक्सेस है, वो उनको मिलता है। तो एनी टाइम दे कैन एक्सेस योर कैमरा, एनी टाइम दे कैन एक्सेस योर माइक्रोफ़ोन, एनी टाइम दे कैन एक्सेस योर लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब कुछ आपके फ़ोन में क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ वो अगर एक्सेस कर सकते हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी पता है। तो उस तरह से ये एनुअल इनकम पता चलेगी। मान लो एक आधा कस्टमर मॉल में आते हो, तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, तो वो हमें थोड़ी ही पता होगा। लेकिन एज़ द डेटा इज़ ऑनलाइन, तो उसका इन्फॉर्मेशन पता करना कोई बड़ी बात है नहीं। ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज़ द स्टेप्स एज़ वी हैव फिनिश्ड विद दिस। सो स्टेप नंबर 1, एज़ यूजुअल, loading the important libraries or the important packages that we need. That is nothing but the numpy, pandas, matplotlib. Numpy library required for array related functions, pandas required for the csv files handling the data sets, and the matplotlib is required for plotting the results. Step number 2, loading the dataset. Dataset को load करना है। डेटासेट अपना मॉल कस्टमर्स डॉट सी एस वी है, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स को हम टारगेट करेंगे। नंबर 1 इज एनुअल इनकम एंड नंबर 2 इज स्पेंडिंग स्कोर। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हम क्या कौन से कैटेगरी के कस्टमर्स है। तो अकॉर्डिंग टू दैट विल बी एक्सट्रैक्टिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स एक्स, और हमें वाई को जनरेट करना होगा। उसकी कैटेगरी है, उसको जनरेट करना है। फिर वी नीड टू फाइंड आउट द के और द what we can say, the number of clusters using the elbow method, तो for which मैं k means clustering algorithm को run करूँगा 10 times with different different values of k। तो उससे मैं WCSS फाइंड आउट करूँगा, और उसका जो ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से कस्टमर्स, या सॉरी कौन सी
के की वैल्यू होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए फॉर द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ WCSS। तो वो हम ग्राफ प्लॉट करके उसका एल्बो फाइंड आउट करके ले लेंगे, उसका कोई बड़ी बात है नहीं। देन ट्रेनिंग द मॉडल एंड जनरेटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई मतलब कैटेगरी, उसका ग्रुप 0 1 2 3 4 करेंगे और उस रिजल्ट को विजुलाइज करेंगे। एंड विजुलाइजेशन के लिए वी विल बी यूजिंग द अलग अलग कलर्स एंड डिफरेंट लेबल्स एंड वी विल बी टेकिंग डेटा फ्रॉम द एक्स रिजल्ट, क्योंकि हमें जो कस्टमर है वो एक्स के अंदर है, एक्स अपना वेरिएबल है, उसमें से सारे कस्टमर तो हमें लेने नहीं है। जिसकी कैटेगरी जीरो है, दैट मीन्स वाई प्रोडिक्शन जिसका जीरो आया है, मतलब वाई प्रोडिक्शन मतलब क्लस्टर का आईडी है, वो जिसका जीरो आया है वो कस्टमर हमें यहाँ पे लेने हैं। अदरवाइज आप ये सिंप्लिसिटी के लिए आप ये कर सकते हो कि वाई प्रोडिक्शन की जगह आप यहाँ पे क्लस्टर आईडी करके एक वेरिएबल ले लो, क्लस्टर आईडी। तो एक्स जहाँ पे क्लस्टर आईडी जीरो है वो ले लो, क्लस्टर आईडी 1 है वो ले लो, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ये यहाँ पे वाई प्रोडिक्शन के अगेंस्ट आप क्लस्टर आईडी वेरिएबल यूज करोगे, दैट विल बी मोर रिलेवेंट एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल बन जाएगा। तो फिर हम इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाएंगे जिसके अंदर हम सेंट्रोइड भी लेंगे। सेंट्रोइड उस क्लस्टर का सेंटर जो भी होगा वो हमारा होगा सेंट्रोइड और उसका सेंटर, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूज में लाएंगे। और हर एक क्लस्टर का हर एक सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर सेंटर है वो टोटल 5 नंबर ऑफ हमारे रोज होंगे, तो उसके सारे रोज हमें यूज करना है। और जीरो मतलब उसका फर्स्ट कॉलम एंड वन मतलब उसका सेकंड कॉलम, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। तो उसका साइज 200, उसका कलर वगैरह ये हमें कोई बड़ी बात है नहीं, हमने प्लॉटिंग लाइब्रेरी में वो देखा है। फिर उसको हम दे देंगे उसका एक्स लेबल वाई लेबल। और रियल टाइम डेटा पे प्रिडिक्शन करने के लिए अगर नया कस्टमर आता है तो उसका एनुअल इनकम क्या है, उसका स्पेंडिंग स्कोर क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल कैलकुलेट द कस्टमर आईडी की क्लस्टर आईडी सॉरी, कि उसका क्लस्टर आईडी क्या होगा। ओके, तो व्हाट कुड बी द क्लस्टर आईडी फॉर दैट कस्टमर, तो हम उसका क्लस्टर आईडी फाइंड आउट करेंगे। और जो भी उसका क्लस्टर आईडी होगा, बेस्ड ऑन दैट क्लस्टर आईडी विल बी असाइनिंग टू दैट कस्टमर, और उसको बाद में उस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। Okay, so hope it is clear. So now we will conclude with today's session. But before we close the session, if you are having any queries regarding the today's session, you can definitely ask in the chat section.